All right, guys. So I welcome you all to this session, and it's a special session, and we are congratulating and celebrating the success of all these amazing students who have done amazingly well in one of the toughest IOQM exams ever. So yes, सब लोग आए हैं यहाँ पे, and the only purpose of today's session is to motivate you. देयर वुड बी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो पहली बार शायद मैथमेटिक्स ओलंपियाड प्रिपरेशन का शुरुआत करने वाले हैं. देयर वुड बी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने इस बार काफी अच्छा तैयारी की होगी, बट रिजल्ट्स माइट नॉट हैव गॉन देयर वे. And so we have got all these students and these and their stories, and I'm sure all each and every story is going to motivate, and you are going to relate to some of the stories yourself with you. जिस तरीके से तुम्हारे साथ गुजर रहा है हो रहा है, आई एम श्योर इन बच्चों के साथ भी हुआ होगा 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले. And let us get started, guys. So we have Chetan sir with us, and with all these beautiful kids who have done amazingly well. एक बार तालियां मार दो यार, because ये एक बहुत ही मुश्किल IOQM एग्जाम था, एंड जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया है, मतलब अभी हम चेतन सर और मैं यही बोलते रहते हैं सब बच्चों को कि यार अगर हम ये एग्जाम देते हैं वो 3 घंटे, तो हम शायद इतना स्कोर नहीं कर पाते जितना इन लोगों ने किया है. एंड सुपर, सो प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गाइस. सो चेतन सर. सच में सर, बिल्कुल सही कहा आपने. अगर हम इनफेक्ट मिलकर भी इकट्ठे होकर भी एग्जाम देते ना, तो भी शायद 30-40 ना क्रॉस कर पाते, क्योंकि टफ था. अभी तक का टफेस्ट एग्जाम था. तो हैट्स ऑफ टू दीज पीपल, है ना. 30+ लाना, एंड इनफेक्ट बहुत बच्चों का 40+ भी आया है, is not an easy task, and we wish them all the very best for their RMO and for the INMO exam. and हम मतलब सिंसियरली मतलब बहुत उम्मीद कर रहे हैं, एंड इनफैक्ट वी आर क्वाइट श्योर कि ऐसा होगा भी, कि सेम बच्चों के साथ हम दोबारा सेम मीटिंग कर रहे होंगे आरएमओ और फिर इनमो के लिए. यस, इनफैक्ट हाँ, बच्चे नंबर ऑफ बच्चे इंक्रीज हो सकते हैं. बहुत सारे बच्चे 9th के भी हैं यार, कुछ बच्चे 10th के भी हैं, 11th के भी हैं, 12th के भी हैं, है ना. तो आप लोगों को काफी जो अभी देख रहे हैं बेसिकली इस वीडियो को, आप लोगों को काफी अच्छी स्टोरीज सुनने को मिलेंगी, एंड आई एम वेरी श्योर आप में से हर एक बच्चा किसी ना किसी स्टोरी को खुद से जरूर रिलेट कर पाएगा. यस. So let's get started. So किससे शुरू करें? So okay, let's start with Shankardeep. So Shankardeep is in class 12th, and he has scored 41 marks, guys. 41 marks in this paper. Amazing, Shankardeep. So proud of you. And let's start, Shankardeep. किस तरीके से तुमने IOQM का एग्जाम, मतलब किस तरीके से how did you get to know about this exam? How did you start? And कितने attempts दिए? And what is your story? I got to know about IOQM from Vedantu Olympiad School only from YouTube, like from Abhay sir's YouTube videos. Like it was like in class 9th, and I wished to prepare for it from class 11th, but like in class 10th end, it was my board's exams, but the IOQM exam got delayed, so I started preparing from the month of February. So that was my first IOQM preparation, and then like in the first attempt I got 22. I did not qualify that. So, and last year I qualified IOQM. Like I am also preparing for JEE. It's hard to manage both, but it's okay. And the way you are doing it is amazing. 41 marks with JEE preparation is something which is so good. Yeah, thank you, sir. I also qualified this year, and always it's not about qualifying. Like as Abhay sir always says, like it's always more important the journey. Like the journey is always the more important. Like whatever I have learned, I am very wishful that I will always be able to apply that in life and any situation in life. Amazing. So about that learning part, Shankardeep, so again, as you said, you are preparing for JEE. तो JEE में किस तरीके से हेल्प हुआ? मतलब सिर्फ मैथ्स में हेल्प हुआ, फिजिक्स में भी हो रहा है, एंड कौन कौन से टॉपिक्स है स्पेसिफिकली जिसमें तुम्हें लगता है कि काफी कॉन्फिडेंट हो बिकॉज ऑफ द प्रिपरेशन दैट यू डिड फॉर IOQM? It's really helpful because like it motivates our thinking ability in every aspects. Like in any logical chapters, it helps us a lot. Like in physics, like mechanics, and in the overall mathematics part, like it overall improves mathematics in overall mathematics thinking ability. And in JEE, like in all subjects, there are some numerical parts. In all numerical parts, it helps, and it also arises the thinking abilities also. Great. So which batch were you in, Shankardeep? I was in INMO and INMO batches. Okay, great. कैसा रहा एक्सपीरियंस वो वाला?
It was a good experience. I gave the test. I unfortunately was not able to attend the live classes. I attended some recorded classes. As it was a pressure of time, I gave all the mock tests. It was a good experience. It was a very great experience, and I am also happy to see VOS performing so well in last 3 years in their IOQM preparations. It is because of people like you, students like you, who are making us proud. Thank you. Thank you, sir. Amazing. So good. So we'll come back to Shankardeep after some time. बीच बीच में बातें करते रहेंगे. So let's go from Shankardeep to Om 245. Okay, Om 245 का क्या मतलब है भाई? No, sir, that's my favorite number. Oh, 245. क्या Yes, मैथमेटिक्स है इसके पीछे भाई? सर वो एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगा तो पूरा लेक्चर निकल जाएगा. भाई देखो मतलब 245 नंबर इसने चुन के लिखा कि एक्सप्लेन करेगा तो भी पूरा लेक्चर निकल जाएगा. मतलब हर एक नंबर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इतने अच्छे नंबर हैं. मतलब अमेजिंग, कर सकते हैं. सुपर, ग्रेट. तो ओम कैसे हुआ, कौन सी क्लास में हो, कौन से बैच में थे, कैसा प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस रहा, एंड हाउ डू यू फील? सर हाँ, मुझे YouTube से पता चला व्यूअर्स के बारे में और ये IOQM के बारे में पिछले साल 9th में. और वहाँ पे मैंने मतलब प्रिपरेशन की, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं थी. और वहां से भी बहुत सारे मुझे मिस्टेक पता चली. और इस साल मैंने फुल प्रिपरेशन की थी. जैसे कि अप्रैल से ही मैंने पूरी क्लासेस लगाना, असाइनमेंट करना. उसके बाद आपके जो टेस्ट थे अक्टूबर में, वो बहुत यूजफुल पड़े मुझे. और प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई. बैच में थे ओम तुम? आरएमओ बैच में थे. ओके, ग्रेट. यस एंड अमेजिंग. सो ओम गाइस, हमारा मतलब जो 10th क्लास का जो बेस्ट रिजल्ट है ओम, right? So it is very difficult to crack IOQM, and Om has scored 40 marks in this IOQM, being in class 10th, and it is not easy because जिस तरह का पेपर है, जिस तरीके का difficulty level IOQM year by year difficult होता जा रहा है, it is not easy for students of class 8th 9th and 10th. in fact 11th 12th के लिए भी easy नहीं है, but 8th 9th 10th के लिए थोड़ा सा और डिसएडवांटेज होता है, बिकॉज 11th 12th के बच्चे काफी हद तक काफी चीजें कर लेते हैं जेई में. फॉर एग्जांपल फंक्शंस है, फंक्शंस, चलो ये चीजें यहाँ पे भी करते हैं, बट वो फॉर्मली कर लेते हैं. So it becomes very difficult for these students of 8th, 9th and 10th, and but the way you performed home, amazing, and बहुत बढ़िया. तो ओवरऑल कैसा फीलिंग आ रहा है भाई 40 मार्क्स लेके? हाउ डू यू फील? नहीं मतलब अभी आरएमओ भी करना है, इनमो भी निकालना है, IMTC मतलब IMO पे जाना है. अमेजिंग, अमेजिंग. यही और सर यस, जैसे बेनिफिट बोले तो मतलब जो हमें प्रॉब्लम्स टैकल करने की जो मतलब स्ट्रेटेजी है, लेकिन मतलब कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में या फिर कोई सब्जेक्ट में, कोई कुछ प्रॉब्लम हमें मैथ्स में पहली बार इम्पॉसिबल लगते थे और वो अब सॉल्व होने लगे. वैसे आप कुछ भी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आ गया तो हम सॉल्व कर सकते हैं. ऐसा एक कॉन्फिडेंस रहता है मन में प्रिपरेशन के बाद. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. फेवरेट इक्वेशन कौन सा मैथ्स का? इक्वेशन सर x square plus 16y square 61y square I think. yes. अच्छा, yes x square plus 61y square. yes sir. इसके yes sir. तो इसका क्या मतलब, इसमें 61 का क्या क्या लगा? ब्रह्मचारी, अच्छा मतलब ये थे हमें वो उन्होंने एक उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो 13 डिजिट का होता है, x और y का. वो उन्होंने फाइंड किया था. तो हाँ, so उसमें अभी मुझे भी रिसर्च करना है अभी. अमेजिंग. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू डू ग्रेट ओम. बहुत बढ़िया. एंड ओम मतलब कभी ऐसा लगा था, मतलब ये 9th के 10th के बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि सर नहीं हो पा रहा एंड बहुत मुश्किल है, तो मतलब आई एम श्योर तुम्हें भी इस तरह की चीजें कभी थॉट्स आते होंगे जब चीजें तुम कर रहे होगे, क्वेश्चंस कर रहे होगे, बट सवाल नहीं निकल रहे होंगे. तो हाउ डिड यू टैकल those moments? हाँ मतलब मुझे भी इस साल भी टेस्ट में कभी कभी बहुत कम नंबर आते थे, लेकिन तभी मतलब मैथ्स में इंटरेस्ट है तो वो करना है. मतलब मैं एक बार मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ अगर मैंने फुल प्रिपरेशन की और मेरा पूरा फोकस वहां पे रखा तो. इसलिए
मैथ्स में इंटरेस्ट था इसलिए कर सकते हैं ना। सुपर सुपर, हार नहीं मानना है मतलब। Amazing, thank you for the story and we'll come back to you. All right, so Chetan sir, अब सर तो हम लोग है ना, शंखदीप में बहुत अच्छी बात कही है दोनों ने। हाँ एंड इनफैक्ट स्पेशली जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, ओम ने देखो शंखदीप ने सबसे अच्छा क्या था कि जो बच्चे स्पेशली ये पूछते रहते हैं कि IUQM और जेई का सिलेबस तो बहुत अलग है, तो IUQM का प्रिपरेशन करने से जेई में क्या फायदा होता है, तो शंखदीप ने बहुत अच्छे से उसका आंसर किया कि IUQM की प्रिपरेशन एक्चुअली अपना ना दिमाग खोल देती है, तो हमें सोचना आ जाता है। तो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, डेफिनेटली मैथ्स में तो फायदा होता ही होता है, मैथ्स में तो बहुत अच्छे से फायदा होता है। अगर आपने RMO लेवल तक का प्रिपरेशन किया हुआ तो जेई का मैथ्स बहुत इजी लगने लग जाता है। बट पैरेलली सोचना कैसे है वो सब चीजें आ जाती हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बहुत, मतलब फिजिक्स क्या है यार, फिजिक्स तो सोचने वाली चीज है ना। तो थॉट प्रोसेस कैसे आपके चैनलाइज होने चाहिए, किस डायरेक्शन में आपकी थॉट्स जानी चाहिए, वो सब बहुत इजी हो जाता है फिर, है ना। एंड ओम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कभी भी है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के सेंस में मत सोचो। हमेशा देखो, ये इनफेक्ट इस मीटिंग का पर्पज ही है कि मैथ्स के लिए अवेयरनेस हमें फैलानी है। मतलब सिर्फ हम नहीं, आप स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने इंडिया में स्पेशली मैथ्स ओलंपियाड को लेकर बहुत कम अवेयरनेस है। तो जैसे ओम ने कहा कि वो रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है, और इनफैक्ट मतलब ये जो इक्वेशन कह रहे हैं x² + 61/2, तो भी वेरी ऑनेस्ट हम लोगों को भी नहीं पता, ठीक है। और जैसे कह रहे हैं कि कितना 8 डिजिट का आंसर आता है ओम इसका, 13 डिजिट का। 13 डिजिट का, तो भाई इतना तो हम लोग भी नहीं सोच पा रहे। तो बहुत अच्छा लगता है सुन के ना कि बच्चे मैथ्स में रिसर्च फील्ड में जाना चाह रहे हैं। एंड इनफैक्ट अल्टीमेटली एम भी यही है यार, यही हम लोगों का पर्पस है वेदांतु ओलंपियाड स्कूल एस्टेब्लिश करने का, कि बच्चों में मैथ्स को लेकर काफी अच्छे से अवेयरनेस हो। एंड कहीं ना कहीं शायद हम वो पर्पस फुलफिल करने लग रहे हैं। एंड मोर ओवर टू, हाँ, टू टेक दिस फॉरवर्ड, जैसा सर ने बोला कि जैसे ओम ने एक क्वेश्चन बोला x² + 61/2 जो हमें नहीं पता है, एंड ऑफ कोर्स मैंने लिख लिया, हम रिसर्च करेंगे इसके ऊपर। बट द आइडिया इज, जैसे अभी RMO कैंप चल रहा है, इसके अंदर सिर्फ मैं और चेतन सर क्लासेस नहीं ले रहे हैं, इसके अंदर हमारे पिछले साल के स्टूडेंट जो हमें लगता है कि किन्हीं स्टूडेंट्स के कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ आवर स्टूडेंट Hershi, ही क्लियर्ड BMO लेवल 2 लास्ट ईयर, एंड उसका हमें पता है कि नंबर थ्योरी एंड कुछ और टॉपिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और हमसे भी बेटर है। सो वी थॉट why not invite these students to share their knowledge with all the others. So again, ये बच्चे कैंप के अंदर क्लासेस ले रहे हैं। प्रणव, who is in class 12th, प्रणव चौधरी, वो 2 बार INMO क्वालिफाई किया है, he is going to take classes, other students are going to take classes, right? So this is the main purpose, to spread the knowledge of mathematics, to spread this beauty amongst all the students who want to learn good mathematics and who want to go beyond school. All right, so amazing. So moving on to, okay, special person Gaurika. So Gaurika is in class 10th, right, Gaurika? Yes, sir. Amazing. And amongst us, I think girl student, she is the highest scorer in Vedantu Olympiad School. And Gaurika, she scored 31 marks in class 10th. Amazing. So Gaurika, how was the experience? कौन से बैच में थे and कैसा रहा ओवरऑल IOQM का जर्नी, और स्टार्ट कैसे हुआ? वेदांतु PRE-RMO और INMO बैच में थी। मैंने IOQM का प्रिपरेशन क्लास 8th में स्टार्ट किया था, लेकिन 8th में मैं बस पाथफाइंडर जूनियर बनाती थी। ओके। और मैंने IOQM का एग्जाम भी 8th क्लास में दिया था, एंड आई 18 मार्क्स आउट ऑफ 40। फिर मैंने क्लास 9th में भी IOQM का एग्जाम दिया था, और इस साल मैंने वेदांतु से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन अप्रैल से। मैंने सारे क्लासेस किए थे RMO बैच के, और मैंने टेस्ट भी सारे दिए थे। अमेजिंग, ग्रेट। और कैसा रहा, मतलब तो स्कूल मैथ्स से, अच्छा 8th क्लास में तुमने यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन, तो 8th क्लास में तुमने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो कितना स्ट्रगल था, कि कैसा लगा? मतलब आई एम श्योर कि वहाँ पे उससे पहले तो वही स्कूल मैथ्स या जो प्राइवेट ओलंपियाड होते हैं वो करते होगे, एकदम से जब IOQM के बारे में पता लगा या शुरू किया, तो किस तरीके से जंप था, किस तरीके से कोप अप किया तुमने? स्टार्टिंग में तो क्वेश्चंस नहीं बनते थे, लेकिन अगर ट्राई करने के बाद सॉल्यूशंस देखना, मतलब 2-3 बार ट्राई करना खुद से, उसके बाद अगर सॉल्यूशंस देखती थी तो समझ में आता था। पहले तो बनता नहीं था, लेकिन उसको 2-3 बार ट्राई करना, दैट इज इम्पोर्टेंट। यस, कीप ट्राइंग, नेवर गिव अप।
अमेजिंग, सुपर गौरिका। एंड आगे के क्या प्लान्स है अभी? जब 10th में हो तुम, अभी जैसे आरएमओ का प्रिपरेशन कर रही हो, कहाँ तक टारगेट है? अभी तो आरएमओ पहले करना है। अमेजिंग, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू डू ग्रेट गौरिका। जिस तरीके से प्रिपरेशन चल रहा है तुम्हारा, आई एम वेरी श्योर कि हम आरएमओ सेशन के अंदर तुमको एंड बाकी जितने भी बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं इन सबको दोबारा से देखेंगे यहाँ पे। ग्रेट, ऑलराइट, सो थैंक यू गौरिका for the story, and let us move on to Aritrik Pal. So Aritrik, welcome. So Aritrik basically is not our student. Aritrik joined us with IOQM test series and is continuing with us in the camp. So Aritrik, overall journey, किस तरीके से overall when did you start preparing for this exam, and how did you cope up with all the difficult situations? सर तो मैंने मतलब मैथ्स ओलंपियाड लेके प्रिपेयर करने शुरू किया था क्लास 6 में। तब मतलब ये IOQM या कोई अलग एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करने शुरू किया था, बस मतलब मैथ्स में इंटरेस्ट था तो वो सब देखने शुरू किया था। फिर ये NMTC और IOQM, फिर ये AMC वगैरह के बारे में पता चला। फिर मतलब मैंने 7th में पहले बार AMC 8 दिया था और NMTC दिया था। मतलब उसमें कुछ खास नहीं मिला, पर ठीक है। फिर जाके 8 में मैंने वापस AMC 8 दिया था, अच्छा उसमें अच्छा हुआ था। फिर NMTC भी दिया था और NMTC के लेवल 2 में मेरे को रैंक 3 मिला था ऑल इंडिया में, तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। फिर आके 9th में मैंने IOQM के लिए IOQM में जस्ट ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहा था, RMO INMO ये सब के लिए। फिर IOQM के 1-1.5 महीने आगे मैंने स्पेसिफिकली IOQM के लिए प्रिपेयर करने शुरू किया। मतलब IOQM के पेपर, फिर कुछ HMMT के पेपर, AMC के पेपर, वो सब देने शुरू किया और फिर IOQM पे। Amazing. So Aritik, just for the audience, Aritik is in class 9th and class 9th में इसको 37 marks. Amazing Aritik, class 9th में बहुत कम बच्चे हैं जो मतलब इस लेवल पे पहुंचते हैं, and amazing to see your success story, and I'm sure with the efforts that you're putting in, you're going to go really ahead. Aritik, by the way, Aritik, I'm sure तुम्हारे father का भी बहुत बड़ा योगदान है. Your father is an Yes. ITN and he has mentored you like जैसा का होना चाहिए. Yeah, he So started on. what is the role of the parents in general? So this is one question which I wanted to ask other students also, but let's start with you. तो किस तरीके से मतलब पेरेंट्स एंड तुम्हारे फादर ने मतलब मेंटोर किया एंड कैसा सपोर्ट था? बिकॉज अभी क्या होता है, देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स हु डिस्करेज स्टूडेंट्स टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर ओलंपियाड की स्कूल के अंदर अच्छा करो एंड ये नहीं करना. सो व्हाट इज योर थॉट एंड हाउ डिड दैट पेरेंटल गाइडेंस हेल्प यू? Yeah, like when I was around in class 6th, like I started, like I was getting bored with the school mathematics and the regular school curriculum. Like, or फिर my father noticed that, and like then he started introducing me to this Olympiad mathematics, and he started me on this journey. He introduced me to these exams and these papers. Like these were the first problem that I could not solve on my own in the first attempt. Like school mathematics was like very elementary. It was getting very boring. But like these problems took some effort, took some real dedication to solve them. And then like he found many of the resources and like guided me on this path. Amazing. Super. Great, Aritik. Chetan sir? 9th में तो भाई 37 marks आना seriously amazing है, काफी amazing. And Aritik, hopefully INMO clear करना है, सिर्फ RMO पे नहीं रुकना है ना. Aritik, एक चीज बताओ, तुमने 6th क्लास में शुरू किया, so what was the first set of things that you started with? I mean, there are a lot of students who start their preparation from class 6, 7. तो पहले वो जैसे NCERT करते हैं 10th तक का, not NCERT but NCERT के जो भी relevant topics हैं, they try to do that and then shift on to other material. So how did you start? Yeah, like I started with like Usama, my father showed me a few books of like Silas Sirali. Like I started with his arithmetic and algebra books, and I also started with the basics of geometry. Like these were like, now we are learning these things in class 9. Like I started with these basics of geometry in class 6, like circles, lines, and like this. And like the basics of algebra, and like there was Sirali's number theory book, and that got me very interested into mathematics, like because of the different types of problems and the different types of views it expressed.
Amazing. Great. So thank you, Razik, for sharing your story. I'm sure it is going to help a lot of young students and also the parents, and they're going to get motivated with your success story. Thank you. All right. So moving on to Jay Agarwal. All right. So Jay has been, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जय ना बहुत बहुत टाइम से हमारा स्टूडेंट है. इसको मैं हर कोर्स के अंदर देख लेता हूँ. एंड ये हमेशा मतलब ही इज वन द टॉप स्टूडेंट इन एवरी बैच. ही आंसर्स क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबसे पहले आंसर करता है. एंड सो जय, योर स्टोरी, हाउ डिड इट स्टार्ट एंड कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल वेदांत ओलंपियाड स्कूल का? इन 9th क्लास जब आयोजन के फॉर्म्स निकले थे तो मेरे को एक्चुअली आने के बारे में पता चला था. मेरा मेरा एक और फ्रेंड था, हम दोनों बहुत ऐसे मतलब एक दूसरे साथ मैथ्स के डिस्कस करते रहते थे टॉपिक्स और क्वेश्चंस. तो ऐसे ही फिर मैंने एक बुक मंगा ली. मेरे को पता नहीं था किस एग्जाम की बुक है, बस आगे घर पे वो थी पाथफाइंडर जूनियर. फिर उसको धीरे धीरे सॉल्व करना चालू किया. पता चला IOQM कोई एग्जाम होता है. फिर जिस दिन लास्ट डेट था ना IOQM के रजिस्ट्रेशन का, उस दिन मेरे को किसी दोस्त ने बोला कि है ना आज लास्ट डेट है, मैं तो ऐसे भर रहा हूँ, स्कूल वालों ने फॉर्म दिया मेरे को. तो फिर उस दिन तो उस टाइम में भर नहीं पाया फॉर्म क्योंकि उस टाइम डेट निकल गई थी. तो फिर उस टाइम मैंने प्रिपरेशन चालू की और अगले साल फिर वेदांतु का कोर्स ज्वाइन किया था यूट्यूब से पहले पढ़ा 6 महीने. फिर अचीवर्स बैच ज्वाइन किया था 2 महीने वाला जो होते हैं 2 महीने पहले स्टार्ट, लास्ट ईयर वाला. हाँ सर. तो पिछली बार 23 मार्क्स आए थे सर. एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे इतने आ जाएंगे इतने कम प्रिपरेशन से पहले. फिर अब इस साल पूरे टाइम सर RMO बैच में था, बस टेस्ट दे रहा था क्योंकि जे की प्रिपरेशन चल रही थी साथ साथ में. तो वैसे तो मेरे टॉपिक्स पढ़े हुए थे, तो बस टेस्ट देने से वैसे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहते थे सारे. और अब बस हो गया साथ में. अमेजिंग. ये मतलब तुम बोल तो रहे हो कि काफी तुम्हारी स्टोरी से लग रहा है काफी इजी रहा है हमेशा, बट इट इज नॉट दैट इजी, वेरी श्योर. एंड तो 9th क्लास में प्रिपरेशन, 9th क्लास में इनफैक्ट पहली बार पता लगा जय को. सो अगेन यार यहाँ पर ना सब तरह के बच्चे हैं. सो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग एज लॉन्ग एज फ्रॉम क्लास 5th 6th to student who got to know about these Olympiads in class 9th and they cracked. तो लास्ट ईयर 23 आया था तुम्हारा. यस सर. सो बट कट ऑफ 30 था तो अगेन आगे नहीं पढ़ पाए थे, बट इस बार तो मचा दिए. तो जय हैज स्कोर, जय कितना स्कोर किया तुमने? 34 स्कोर किया. एंड आई एम श्योर दिस इज जस्ट द स्टार्ट जय, एंड अभी आगे बहुत किलोमीटर्स कवर करने हैं. And I'm sure we are going to see you in every success story of ours on YouTube. Okay, Yes. so Jay, what is the advice to the students who are in class 8th 9th 10th में हैं, जो JEE का अभी मतलब फॉर्मल प्रिपरेशन शुरू नहीं किए हैं, तो उनका क्या एडवाइस है अगर वो मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं? तो एक तो नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है हर क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन इन्हीं हर पार्ट में लाइफ में कभी छोड़ना नहीं है उसका पीछे जब तक हो ना जाए. अमेजिंग. कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2-2 दिन 3-3 दिन तुम लगे रहे? यस सर. है? हाँ सर. ओके, ग्रेट, वेरी गुड. चलो थैंक देखिए यू. ना एक बात बहुत ध्यान रखना. अभी मतलब रिसेंटली RMO कैंप की बात कर रहा हूँ मैं, जो पिछले 4-5 लेक्चर्स में इंटरेक्शन था. जब भी ना थ्योरी कराते हैं, जय का पहला क्वेश्चन है सर थ्योरी आती है, आप है ना क्वेश्चन दो पहले. तो ध्यान रखना, मोस्टली क्वेश्चन में जय बोलता है कि सर ये क्वेश्चन किया हुआ है, कोई दूसरा क्वेश्चन दो. मैं बता रहा हूँ, जय इज ऑल्सो इन द कैलकुलस कोर्स. तो मतलब कैलकुलस में वही हम बेसिक से चलते हैं चीजें, एंड जय को मतलब सब कुछ आता है. काफी चीजें इसने वहीं पे IOQM में की हुई हैं. तो मतलब जय, मुझे लगता है कि जय काफी बोर होता है वहाँ पे उस कोर्स के अंदर. सर मैं मेरा होमवर्क लेके बैठता हूँ साथ में. ये उस दिन का होमवर्क लेके साथ में बैठता है. तो अभी मैं वो सोचने वाला हूँ कि इसको दूसरी असाइनमेंट दूंगा मैं कैलकुलस के कोर्स के साथ साथ. तो वो करने वाला हूँ मैं इसके साथ. अमेजिंग. थैंक यू जय, थैंक यू सो मच. All right, so let's move on to one of our special students, Daksh. Daksh guys, तुम लोगों ने लास्ट ईयर भी देखा होगा इसको YouTube पे, एंड Daksh has been our student from the last 2 years. Daksh, 1 year, 2.5 years, and अभी लास्ट ईयर से तो he is shifted to the topper pod, and वहाँ पर मतलब वो टीम इसका ख्याल रख रही है, is in Bangalore.
So Daksh, how did your journey towards mathematics start? And what were the roadblocks? क्या हुआ? कितना मजा आया? And how So, is it helping you in JEE currently? I found out, I guess, in mid of ninth grade. Hmm. So I started with Pathfinder Junior then, around October types. And then I think it was going to be around January, so I had to do it kind of like a lot of times. So that time it was online school, so Hmm. I kind of used to do it during, probably not a good thing, but during During the classes. school, during school as well. Yeah. Okay. So I think I had to skip the first chapter because it was like kuch ban nahi raha tha. It was very difficult for me then. Hmm. So then I kind of got little fortunate that there were a lot of delays with the exam. So that's when I like joined camp. So that like helped a lot with the scores. Like I was getting around 6, 7 out of 100 when or before the like January types, and then they changed it to out of 40. So I was able to clear it that year. Then last year I made a bubbling error, so I missed out, and I was in the INMO and RMO batch in 10th. Okay. And then this year I was in the RMO batch, so I cleared it this year. I got 34. So Daksh is in class 11th and he scored 34th and he's from Bangalore. So amazing, Daksh. So how is this preparation that so formally I think you prepared for IOQM in class 10th. So अभी वो कैसे help कर रहा है? Because you are in JEE, you are in the topper pod batch of Vedantu Olympiad School, and the whole team is banking on you for clearing a lot of other Olympiads as well. So how did Maths Olympiad preparation, I'm not talking about कि वो topics help कर रहे हो, but the thought process and overall, how is it helping and shaping you up? So obviously it helps in maths a lot because some topics are already done and you get like that sense of what they're kind of going for in a question, like what's their thought process when they're making it. Okay. So that helps a lot, and sometimes it feels like it helps more in physics than it does in maths. Great. All right. So thank you, Daksh, for your story. And of course, we'll be seeing Daksh a lot on this channel, guys, because not only for mathematics but other subjects also. We'll keep on bringing Daksh. Thank you, Daksh. All right. So moving on to Mukesh. Mukesh, स्टोरी बताओ भाई. यस सर. हाँ, कौन सी क्लास में हो? कितने मार्क्स सर हैं? क्लास 11 और अभी कितने सर मार्क्स? 31 है. अमेजिंग मुकेश, बहुत बढ़िया. एंड कौन से बैच में थे मुकेश? सर आरएमओ बैच में. आरएमओ बैच में. और कैसा रहा एक्सपीरियंस? कैसे कब शुरू किया तुमने ये आईओक्यूएम का जर्नी? मैं क्लास 9th में अराउंड जुलाई के टाइम मुझे आईओक्यूएम के बारे में पता चला, और फिर अगस्त के अराउंड मैंने पीआरएमओ एंथुसियास्ट बैच में एनरोल किया था वेदांतु पे. वो लास्ट में जो हुआ था. हाँ. तो वहाँ मैंने फिर अपनी प्रिपरेशन शुरू की. उस साल तो डिले हुआ था. फिर हमारा आईओक्यूएम का टेस्ट पार्ट ए पार्ट बी में था, तो पार्ट ए में मुझे इतने अच्छे नहीं आए थे, बट पार्ट बी में मैंने लाइक एक सब्जेक्टिव के क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व किया था, लेकिन पार्ट ए कॉपी चेक नहीं हुआ होगा. चेक नहीं हुआ था, वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन था. फिर क्लास 10th में मैं फिर से आरएमओ बैच में आया था, और आरएमओ बैच में like I prepared for like I joined a class every day and did the assignments, and then around in October I think the IOQM was started, and then I again got enrolled in RMO batch. And then now because I'm in 11, like my coaching time sometimes collapses with the Vedantu classes, so I cannot attend all the classes. I watch the recorded videos and I attend all the tests. And now what I am
ओके, ग्रेट 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 मुकेश। तो यार एवरी स्टोरी, अब तुम देख रहे हो हर स्टोरी शुरू हो रही है कि नाइन्थ में थे, एट्थ में थे, अटेम्प्ट किया, आए मार्क्स नहीं, फिर अगले साल दोबारा से अटेम्प्ट किया, डिड नॉट गिव अप, दोबारा से आए, उतने मार्क्स नहीं आए, कभी कट ऑफ ऊपर जाता था, कभी कट ऑफ नीचे जाता था, एंड अगेन ऑल दीज अमेजिंग स्टूडेंट्स दे डिड नॉट गिव अप, they did not give up, and ultimately now they are where they are, and again they are a source of motivation for each and every one of you who is watching this channel, this particular video, and who will be watching in the future. ये बहुत बड़ी source of inspiration है guys, and ये ना मतलब जिंदगी की बहुत बड़ी सीख है कि there are going to be times when things are not going to fall our way, जितना मर्जी मेहनत कर लो, because there are certain other external factors involved. Like last year external factor क्या था, 30 कट ऑफ कर दिया था पहले ही, एग्जाम से पहले, एंड पेपर इतना मुश्किल आया था कि वो 30 कट ऑफ मात्र 500 बच्चों का पूरा क्लियर हुआ, यू नो। तो इवन दो a lot of them a lot of these students were in the range 20 to 30, 28, 27, जब बच्चों के मार्क्स सुन रहे हैं, but they could not make it, they could not write in more, right? But again they did not give up. So the only key part, the only thing that one of the most important things that this exam teaches us is not to give up, क्योंकि गिव अप कर दिया तो वहीं पे कहानी खत्म है, एंड किसी भी एस्पेक्ट, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पे, राइट? एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई मीन दीज स्टोरीज आर टेलिंग अस, ये अगर तुम डीप डाउन करो यही सीखने को मिल रहा है ईच एंड एवरी स्टोरी से। सो थैंक यू मुकेश फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। एंड अभी जेई में कैसा हेल्प हो रहा है, आईओक्यूएम प्रिपरेशन जो तुमने किया था उसका? यस सर, मैथ्स में तो बहुत हेल्प होता है, लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हमारे से कुछ रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, क्वाड्रेटिक, उन सब में बहुत हेल्प होता है। और साथ में क्योंकि मैं फिजिक्स के लिए प्रिपेयर करता हूँ, फिजिक्स ओलंपियाड, अच्छा, तो वहाँ बहुत ही अच्छा यूज है। ऐसे फिजिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कुछ पोलर कोऑर्डिनेट्स और बहुत सारे यूजेस हैं। तो क्योंकि ज्योमेट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो ज्योमेट्री मुझे बहुत हेल्प करता है। अमेजिंग। Alright, so thank you Mukesh. So let us go on to Adrish. Adrish, are you there? Adrish? Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Adrish, yes. So Adrish is in class 10th, right? Yes, sir. Is in class 10th. He's from Punjab and he scored 36 marks. Amazing Adrish, बहुत बढ़िया यार, मतलब class 10th में 36 score करना is amazing. So Adrish, how did your preparation start? Which batch were you in? And किस तरीके से IOQM के बारे में पता लगा and कैसे शुरू हुआ, क्या स्ट्रगल थी? 8th में मुझे पहली बार पता चला IOQM के बारे में, VOS से पता चला, यूट्यूब से। तो वहां से 8th में तो उतनी प्रिपेयर करी नहीं मैंने IOQM के लिए, तो तब वो पार्ट ए पार्ट बी वाला रूल था, तो पार्ट ए में उतना मार्क्स आया नहीं, लाइक कुछ 9-10 स्कोर किया था मैंने आउट ऑफ 40, तो क्लियर नहीं हुआ। इसके बाद सर when I was in class 9th, I prepared well, like prepared the full year for IOQM and like RMO जो भी था। तो फिर भी हार्ड डे था सर, एक मार्क्स से मिस हो गया मेरा। और 29 आया था तुम्हारा? यस सर। पिछली बार भी हार्ड डे था, तो सर इसके बाद गिव अप नहीं किया सर, सोचे कि और मेहनत किया जाए। तो सर 10th में तो जेई प्रेप कर रहा हूँ मैं कोचिंग से, और साथ ही मतलब IOQM का भी चल रहा है। तो I was in RMO camp, RMO batch in this year, and prepared whole time with them. Okay, great. तो सभी क्लासेस लगाई थी लाइव या रिकॉर्डिंग? यस सर, रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो कोचिंग क्लासेस के लिए हार्ड था अटेंड करना लाइव। और टेस्ट सर सब दिया, एनालाइज किया, और हेल्पफुल था बहुत सर वो। ओके, ग्रेट, सुपर आदर्श। तो 10th में मतलब it is very difficult to attain these kind of marks being in class 10th, and students like you, Gaurika, Aratrik, who are in 9th and 10th, amazing. Om also, Om 11th में, 10th में, Om is in 10th. Om, amazing guys, amazing। मतलब this is actually मतलब बहुत अच्छा लगता है 9th, 8th, 9th, 10th के स्टूडेंट जब इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, एंड 11th और 12th के स्टूडेंट्स के साथ compete करते हैं, मतलब दिल सच में खुश हो जाता है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम, मतलब इट लेट्स यू compete with your seniors। तो आदर्श, कभी एंड किसी और बच्चे के दिमाग में वो है कभी फीलिंग कि
यार मैं 8th में हूँ या 9th में हूँ 10th में हूँ, ये एग्जाम 11th और 12th के बच्चे भी दे रहे हैं, मैं किस तरीके से कोप अप कर पाऊंगा, किस तरीके से compete कर पाऊंगा? सर आदेश? 8th में तो बहुत आता था सर, लाइक हाँ कैसे हो पाएगा, हाँ क्योंकि पहली बार सुना था आईक्यूएम के बारे में, हाँ उसमें लिखा था 11th 12th भी देंगे और सिलेबस भी कुछ ऐसा ही था, हाँ तो लाइक बहुत डर गया था। हाँ। तो फिर इसके बाद समझ आया कि इट्स नॉट अबाउट द एज। यस, अमेजिंग, गुड गुड गुड। ओम, तेरे दिमाग में आया कभी? सर वैसे मतलब इतना भी नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ऐसे कंपटीशन एग्जाम दे रहा था, ओके। तो मतलब इजी वाले। अरे बट इजी वाले तो वो क्लास वाइज होते हैं ना, हाँ वो तो क्लास हाँ वाइज होते हैं, ये तो वैसा एग्जाम था जिसमें 12वीं के बच्चे भी सेम एग्जाम लिख रहे हैं, 11th के बच्चे भी सेम एग्जाम लिख रहे हैं। हाँ, मतलब करके दिखाना है तो करके दिखाएंगे ना सर। अमेजिंग, बहुत बढ़िया, यही एटीट्यूड चाहिए भाई, यही एटीट्यूड चाहिए। हाउ अबाउट यू गौरिका? अभी तुमसे तुम हो, मतलब कर रहे हो एग्जाम का प्रिपरेशन, ये आया कभी दिमाग में कि बड़े बच्चे भी हैं, उनके साथ compete करना है एंड किस तरीके से किया जाएगा? अभी तो नहीं आता है सर, लेकिन 8th में थोड़ा लगता था। ओके ओके, ग्रेट। सो गाइस, एवरी सक्सेस स्टोरी यहीं से, मतलब आदर्श का मतलब सिंगल डिजिट स्कोर से टू स्कोरिंग एज हाई एज 34 मार्क्स इन दिस काइंड ऑफ एग्जाम इज अमेजिंग। और यही मैं हमेशा बोलता हूँ, मतलब सम ऑफ आवर बेस्ट स्टूडेंट्स हैड अ वेरी हम्बल स्टार्ट, सिंगल डिजिट स्कोर से यहाँ तक लेके आना था। अगेन दिस इज शुड बी अ मोटिवेशन फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका अभी कम मार्क्स आया है, एंड इट इज परफेक्टली फाइन, मतलब ये मुश्किल पेपर था, उसमें इतना मार्क्स लेके आना, द फैक्ट दैट यू प्रिपेयर्ड फॉर इट, तुमने एग्जाम दिया, वो 3 घंटे स्ट्रगल किया, वही एक बहुत बड़ी सक्सेस है। एंड एंड इन इन बच्चों की स्टोरी से सीखो, समझो एंड आगे बढ़ो, मतलब दिस इज द ओनली थिंग। एंड मूविंग ऑन टू अयान। अयान, आर यू देयर? Yes, sir. ग्रेट। सो अयान, बताओ कौन Yes, सी? sir. So I'm in ninth grade. तो मुझे IOQM के बारे में पहले पता चला था मई 2022 में। तो मैं उतना भी अच्छा कुछ नहीं था मैथमेटिक्स में, बिलो एवरेज ही था, बिलो एवरेज नहीं कहूँगा, मतलब एवरेज था। इनफैक्ट मुझे क्लास 5 में एक स्कूल टेस्ट में 15% मार्क्स मिले थे। थैंकफुली दैट वाज अ क्लास टेस्ट, बट मई 2022 में लाइक मैं VOS के वीडियोस देखना शुरू किया, तो उसके बाद मुझे मैथमेटिक्स में एक जेन्युइन इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। और फिर मैं IOQM वो PRE-RMO बैच में था लास्ट ईयर का, और मुझे लास्ट ईयर 17 मार्क्स मिले थे। तो बट वो मेरे लिए हार्ट ब्रेक था, क्योंकि मुझे टेस्ट में जो PRE-RMO को टेस्ट थे वेदांतु में, उसमें 35-40 मार्क्स मिल रहे थे, तो उससे सडनली 17 मार्क्स, वो एक बहुत ही बड़ा हार्ट ब्रेक था। पर उस समय हमारे स्कूल में एक सेमिनार लेने के लिए ISI से एक प्रोफेसर आए थे, तो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने भी बहुत मोटिवेशन दिया, और सर आपने भी बहुत मोटिवेशन दिया। उसके बाद फिर से मैंने प्रिपरेशन करने लगा, और इस साल 34 मार्क्स मिले, सो आई डबल्ड माय स्कोर बेसिकली। और हाँ, तो अभी मेरा मेन एम है ISI जाना, तो अभी मैं ISI बैच भी ज्वाइन कर चुका हूँ, तो हाँ। अमेजिंग। सो अयान, तो तुम RMO बैच में थे लास्ट ईयर? नहीं, लास्ट ईयर PRMO, दिस ईयर RMO सर। हाँ, इस साल, मतलब दिस ईयर यू वर इन RMO बैच। यस सर। सो कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल RMO बैच का? डिड यू अटेंड ऑल द क्लासेस? यस सर, ग्रेट, सो ग्रेट एक्सपीरियंस। लाइक मैं कई जब क्लास के टाइम्स में अगर कोई एग्जाम भी रहता था, तभी मैं क्लास अटेंड कर लेता था। अमेजिंग। चेतन सर की पजल्स कितने परसेंटेज कर पाते थे? सर बहुत मुश्किल रहते थे, पर ठीक है, इंटरेस्टिंग भी थे। ओके, ग्रेट, सुपर। चेतन सर? आयन का नाम काफी बार आता था, मतलब काफी क्वेश्चन जो आते होते थे उसमें, मतलब जो बच्चे पहले सॉल्व कर लेते थे उनका जनरली मैं नाम स्क्रीन पे लिख देता था, तो आयन का भी काफी बार उसमें नाम आया था। आयन से अच्छा बच्चा है, एंड वी आर होपफुल INMO तक तो डेफिनेटली जाना चाहिए इसी साल। अमेजिंग अमेजिंग आयन। आयन, ये पीछे व्हाइट बोर्ड का कैसे इस्तेमाल करते हो पढ़ाई के लिए? सर व्हाइट बोर्ड बेसिकली वो मैं क्या करता हूँ, फेनमैन टेक्निक होता है, तो अगर कोई चीज मैं पढ़ता हूँ तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि इमेजिनरी स्टूडेंट्स को भी सिखा देता हूँ, तो उससे अच्छा लर्निंग होता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये सब है ना, अगले साल VOS पे क्लासेस लेने का प्लान कर रहे हैं। यस सर।
मुझे भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, आकृति का लेक्चर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। मुझे लग रहा है कि आरात्रिक, गौरिका, ओम, ये दक्ष, शंकरदीप, ये सब लोग यहाँ पे क्लासेस लेना शुरू करने वाले हैं। हमारी वाली कम होने वाली है विद टाइम। बट दिस इज अमेजिंग गाइस, मतलब ये बहुत सही चीज है। एंड मतलब वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दिस कम्युनिटी, एंड हम इसी तरीके से मैथमेटिक्स को स्प्रेड करना चाहते हैं। दैट मैथमेटिक्स जरूरी नहीं है कि मतलब एक टीचर ही सिखाए। सो राइट, वी वांट टू प्रमोट दिस कल्चर कि कोई भी चीज किसी की स्टूडेंट की भी अच्छी है, he should spread this, and this is how our telegram culture also works. So हम telegram में भी मतलब अगर तुम देखो, if you I mean all of you I'm sure were a part of all your respective telegram batches, and जिस तरीके से डिस्कशन चलता है बच्चों के amongst, and जिस तरीके से डिस्कस आइडिया शेयर करते हैं बच्चे एंड मटेरियल शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, आई मीन दैट इज सो गुड टू सी, सो अमेजिंग टू सी, एंड सो दिस इज अमेजिंग। सोयान, मतलब लास्ट जो तुमने क्या चीज सिखाया डमी स्टूडेंट्स को, याद है? सर मैं इसी सेशन के पहले वो आर्थर एंजल का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था गेम थ्योरी का, तो वही। अमेजिंग, बहुत बढ़िया, ग्रेट। आयान, आप आईएनएमओ बैच में भी थे क्या? नहीं सर, आरएमओ बैच, एंड आई हैव जॉइंड आईएसआई बैच। ओके, आईएनएमओ बैच में हमने आर्थर एंजल की गेम थ्योरी के ऑलमोस्ट काफी हद तक काफी सारे क्वेश्चंस किए। मुझे लगा कुछ वही सिमिलर से क्वेश्चन कर रहे होंगे। अमेजिंग। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीवन। कोई रह गया क्या? इज देयर एनीवन हु इज लेफ्ट? नो, आई थिंक वी कवर्ड अप। So anyone who would want to add anything apart from what he or she has discussed? कोई और कुछ ऐड करना चाहता है कुछ स्टोरी में? स्पाइस, कुछ चीज याद आ गई हम जो बातें कर रहे थे, कुछ ऐड करना चाहता हो, कुछ और मोटिवेट करना चाहता हो, कुछ अपने जूनियर्स को मैसेज देना चाहता हो? एनीवन? नो। सो या यस सर, मतलब मैं आरएमओ बैच में था ना, तो हाँ। चेतन सर ने हमसे बहुत सारे इनमो लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ आईएमओ के भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उससे बहुत मोटिवेशन मिला था हमें। यस, तो वो होता है, मतलब बिल्कुल होता है ये, एंड कि तुम एक पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, उससे ऊपर वाले लेवल्स के क्वेश्चन अगर तुम सॉल्व कर रहे हो और कर पा रहे हो खुद से, तो मतलब इट गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। अभी अभी आई थिंक अयान ने बोला कि आईएसआई का के किसी टीचर ने आके उनको मोटिवेट किया। सो दीज आर छोटी छोटी चीजें होती हैं लाइफ में, जो जो अपने को ना, मतलब इवेंट्स होते हैं जो अपने को इतना मोटिवेट करते हैं कि उसके बाद फिर पीछे देखना मतलब होता ही नहीं है, राइट? सो अमेजिंग, मतलब थैंक यू चेतन सर फॉर ऑल द हार्ड वर्क दैट यू बीन डूइंग ऑन आरएमओ एंड इनमो स्टूडेंट्स, एंड बच्चे तो मतलब बहुत बड़े फैन है आपके आपके इन क्वेश्चंस के, पजल्स के, एंड मतलब अभी तो मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, शुरुआत हुआ है चीज़ों का। तो तो इन्हीं बच्चों को हम दोबारा से आरएमओ सक्सेस स्टोरी के अंदर और इनमो सक्सेस स्टोरीज के अंदर देखना चाहते हैं। इनफैक्ट इनसे भी बहुत ज़्यादा बच्चे, इनफैक्ट अभी तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, हमने तो बहुत कम बच्चों को बहुत कम किया है कि एक एक बच्चे के ऊपर सक्सेस स्टोरी बताई जाए, तो बच्चों को काटा है। बाकी बच्चे अगले सेशंस के अंदर अब आने वाले हैं, राइट? सो मतलब बच्चों की इतनी बड़ी लिस्ट है यहाँ पर कि खत्म ही नहीं हो पा रही। हमारा ये तीसरा सेशन आई थिंक, एंड अभी बहुत सारे सेशंस और करने वाले हैं हम इसके। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। अभी 8 बजे सब लोगों की वो आरएमओ की क्लास है आरएमओ कैंप के अंदर, तो विल हैव टू एंड दिस सेशन राइट नाउ, बट amazing to see this amazing result of each and every one of you. Amazing to listen to your stories, किस तरीके से, मतलब most of the stories are like कि 2 साल 1 साल अच्छा नहीं गया and अगले साल क्रैक किया, and I'm sure this is going to motivate a lot of students, और यही मेन पर्पस है इस तरह के वीडियोस को करने का। इट इज नॉट टू शो कॉज कि हमारे पास कैसे बच्चे हैं, इट इज कि मैथमेटिक्स को स्प्रेड करना है, एंड दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, एंड हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स, अच्छा मैथमेटिक्स को स्प्रेड किया जाए, इस तरह के मैथमेटिक्स के बारे में सब बच्चों को बताया जाए, एंड यू आर ऑल द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ दिस एग्जाम एंड मैथमेटिक्स, right? So thank you each and every one of you for sparing time, and अभी जर्नी सिर्फ स्टार्ट हुई है, दिस इज जस्ट द स्टार्ट, एंड अभी बहुत 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 लंबा सफर करना है। सो लग जाओ, जुट जाओ, एंड
we hope to see you all in RMO success story also. Ketan sir. बस यही यार, कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। 15 मिनट का ब्रेक मिला है, अच्छे से अपना जो भी करना है 15 मिनट्स करो, फिर 10 बजे तक क्लास आपकी है ना। हाँ, तो 15 मिनट भाई खाना खुना खा लो, 8 बजे क्लास है तुम्हारी RMO कैंप की। So thank you all, thank you everyone who is watching this and who will be watching this. I hope you all got motivated by these stories and were able to relate some of the stories with you. And I'm sure this is going to help you, achieve great success the next year if you were not able to do well. Take care. God bless you. Bye, bachcho. Bye, everyone. Thank you. Thank you all.